Good morning, students. How are you? Myself, Bhavik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So today we will discuss some important questions from differentiation part. And I think in the last lecture, we had discussed various questions and the solutions as well from the differentiation on the range. That means in these differentiation questions, some range will be given, and using this range you need to find the differentiation of any particular function. Okay, we will discuss such type of questions which are very important for the board exam as well as for the entrance exam also. Okay, so without wasting time, चलिए शुरू करते हैं. Okay, just write your first question. Differentiate. Just write your first question. 1. Cos inverse twice x square minus 1. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 0 लेस देन x लेस देन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है -1 लेस देन x लेस देन 0. Okay, so here these two ranges are given and it is your function y equals to, okay, here it is your function. Now you need to find the differentiation of this particular function on this given range. Okay, तो शुरू करते हैं. Given, सबसे पहले लिखो given y equals to cos inverse ब्रैकेट में twice x square minus 1. So firstly we need to think about the formula structure. That means do you have any kind of formulas regarding this structure twice x square minus 1? Yes, obviously we have, and that is just you can write the formula cos 2 theta equals to 2 cos square theta minus 1. So if you want to use this formula, then I think in place of x we should use the substitution as cos theta. So that means y equals to cos inverse 2 cos square theta minus 1. So y equals to cos inverse bracket में होगा cos 2 theta, right? Now it is your equation number 1. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 के बाद मुझे क्या करना है? जस्ट यू शुड यूज द गिवन रेंज 0 लेस देन x लेस देन 1. तो यहां पर x के जगह तुम्हें cos थीटा यूज करना है और 0 मतलब क्या होता है? 0 मतलब cos किसका वैल्यू 0 होता है? cos 90 का वैल्यू 0 होता है. दैट मींस cos पाई बाई 2 और cos 0 1 होता है. तो एक चीज हमेशा याद रखना, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर, यू शुड टू जस्ट you should keep this concepts and this process in your mind, that whenever just you are dealing with the cosine functions, just try to remember the trigonometric chart whatever you have got in class 10. Okay, whenever just you will have this cosine function, just if you increase the values of the degrees, that means if you increase the angles, the values will be decreased. ठीक है, cos function में देखो जितना वैल्यू इंक्रीज होता है उतना ही एंगल डिक्रीज होता है. ठीक है, cos फंक्शन में, और cos फंक्शन में जितना वैल्यू कम होता है उतना एंगल बढ़ता है. फॉर एग्जांपल cos 0 मतलब क्या होता है? 1. cos 30 डिग्री √3/2. cos 45 डिग्री 1/√2. cos 60 हाफ. हाँ, cos 60 कितना होता है? हाफ. cos 90 0. सो दैट मींस यहां पर एंगल जितना बड़ा है वैल्यू उतना ही कम हो गया. दैट मींस वैल्यू के साथ एंगल फॉर्मेशंस जो वो इनवर्स प्रोपोर्शन है. दैट मींस जिस डायरेक्शन में वैल्यू जाएगा उसका ठीक उल्टा डायरेक्शन में एंगल आएगा.
तो यहां पर देखो, जब मैं ये एंगल फॉर्मेशन में लेके चला जाऊंगा तब ये 0 डिग्री इधर आ जाएगा, कॉस 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 तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर थीटा और इधर पाई बाई 2। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब वी नीड टू गेट 2 थीटा नॉट थीटा, हम लोग को 2 थीटा चाहिए। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूं दैट मींस 0 2 थीटा लेस देन पाई। now according to the concept cos थीटा अगर एक फंक्शन होता है, थीटा का रेंज कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके पाई तक होता है। ठीक है, ओके, सो दैट मींस यहां पर तो आ गया है, यहां पर तो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रॉम अगर यहां पर रेंज में आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना? तो यहां पर फ्रॉम 1 y इक्वल्स टू जस्ट कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। ओके, तो यहां पर कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल मारो, आ जाएगा यहां पर सिर्फ 2 थीटा। दैट मींस y इक्वल्स टू 2 इंटू थीटा, मतलब यहां पर क्या होगा, कॉस इनवर्स x, दैट मींस dy बाई dx इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, cos इनवर्स का एक माइनस भी रहेगा सामने। ठीक है, ये माइनस यहां पर दे देते हैं, तो अल्टीमेटली dy बाई dx का आंसर यहां पर होगा -2 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, हो गया, समझ में आया? ओके, नाउ अगर मैं सेकेंड पोर्शन में जाऊं, सेकेंड मतलब सेकेंड रेंज में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, -1 लेस देन एक्स लेस देन 0। ठीक है, अब कोसाइन फंक्शन में कितने का वैल्यू -1 होता है? ठीक है, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है। ठीक है, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1। अगर आप यहां पर यू नीड टू, इफ यू वांट टू वेरीफाई देन यू कैन, कॉस 0 कितना होता है, 1, यहां पर आएगा कॉस पाई, मतलब क्या होगा, -1 होगा ना, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, दैट्स व्हाई यू हैड गॉट दिस 1, एंड इट इज योर नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दिस -1। एंड cos पाई बाई 2 0, एंड यहां पर भी 0 होता है, फिर से घूम फिर के अगर यहां पर cos 2 पाई फिर से 1 आएगा। ठीक है, cos 3 पाई फिर से -1 आएगा, ऐसा चलता ही रहेगा। सो दैट मीन्स -1 को cos पाई हम लोग लिख सकते हैं, फिर cos थीटा, ठीक है, और 0 मतलब क्या होता है, cos कितने का वैल्यू 0 होता है, cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला था cos 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 अगर मैं कैंसिल करूंगा तो यहां पर एंगल भी थोड़ा रिवर्स हो जाएगा, दैट मींस ऐसे। राइट, अब 2 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहां पर 2 थीटा एंगल है, 2 2 2 अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 2 थीटा, और इधर हो जाएगा 2 पाई। But according to the cosine function, the range should be lying between 0 and pi. But here you can see pi से ऊपर चला गया 2 पाई तक, which is not possible. Which is not possible. यहाँ पर पाई को क्रॉस नहीं कर सकते हो आप। Now that means you are going, that means you are crossing the limit. You are going beyond of your range. Okay. So now the question is, how to bring it in the range? How to get it in the range? Okay. The process is, as I told you, one of your process is just minus multiply मारो। माइनस अगर मैं मल्टीप्लाई मारता हूं 2 पाई -2 थीटा और इधर -पाई। ठीक है, अब हर एक के साथ एक 2 पाई मल्टीप्लाई मारो तो ये 0 हो गया, और इधर हो जाएगा देखो 2 पाई -2 थीटा। ठीक है, और इधर हो जाएगा पाई, देखो रेंज में आ गया, रेंज में आ गया ना। अब फ्रॉम 1 में जाओ, फ्रॉम 1 में क्या है, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा के जगह में 2 पाई -2 थीटा, ये आपको बिठाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि 2 पाई -2 थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, 2 पाई -2 थीटा देखो ये है 2 पाई -2 थीटा, दैट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट का ही केस है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव ही होता है, तो नो नीड टू थिंक अबाउट दिस थिंग्स, because in the first quadrant and the fourth quadrant cosine function is positive.
तो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल होकर सिर्फ रहेगा यहाँ पर 2 पाई माइनस 2 थीटा। दैट मीन्स y इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 2 इंटू थीटा मीन्स यहाँ पर cos इनवर्स x। सो dy बाई dx इक्वल्स टू 2 पाई का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होगा, माइनस एक रहेगा, 2 भी एक रहेगा, और cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस दिस ऐसा होगा। अब माइनस माइनस प्लस होके 2 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है आपका प्रूफ। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट एक क्वेश्चन जाएंगे, लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो ठीक है। लो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है 3x, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है माइनस हाफ लेस देन x लेस देन हाफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हाफ लेस देन x लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 3 है -1 लेस देन x लेस देन माइनस हाफ। राइट, ये 3 क्वेश्चंस हैं, दैट मींस 3 रेंज है। जस्ट इन दिस 3 रेंजेस यू शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। ओके, तो लिखो यहां पर गिवन, गिवन स्टार्ट करो, गिवन, गिवन y इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x cube minus 3x. Do you know any formula regarding this structure? Obviously, I think you should know this formula, cos 3 theta का formula, ठीक है। 4 cos cube theta minus 3 cos theta, ये एक formula है cos 3 theta का। और यहां पर क्वेश्चन ये है कि why should I use this cos 3 theta formula here? Because in this function cos inverse is there, so anyhow we need to get some cosine related functions in the bracket so that we can cancel this cos inverse and cos. So after getting the structure, I think we will have one formula structure, and that is cos 3 theta equals to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. So we can clearly see that in place of x we should use the substitution cos theta. So y equals to cos inverse, ब्रैकेट में क्या आएगा 4 cos cube 4 cos cube theta minus 3 cos theta, right? So y equals to cos inverse, in place of this we can use this formula cos 3 theta, right? cos 3 theta का फॉर्मूला हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, बट वी कैन कैंसिल, कैंसिल नहीं कर सकते। अब शुरू करते हैं 1, ठीक है 1 शुरू करते हैं। वन माइनस हाफ लेस देन एक्स लेस देन हाफ, ठीक है। अब माइनस हाफ को कॉस क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन तो ये है। हाफ को तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कॉस, हाफ को क्या लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। माइनस हाफ को क्या लिखेंगे, कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है, और माइनस हाफ दैट मीन्स माइनस हाफ को देखो ये लिख सकते हैं कॉस 120 डिग्री सपोज, ठीक है। इसका वैल्यू देखो तो क्या होता है कॉस
180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं उसको ऐसे, 120 को ऐसे तो एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग। अच्छा इसका वैल्यू देखो तो 180 माइनस 60 दैट मींस ये और ये, दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट का केस चल रहा है यहाँ पर। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और एंगल क्या होता है 60 डिग्री, दैट मींस cos 60 माइनस cos 60 दैट मींस माइनस हाफ। दैट मींस cos 120 का वैल्यू माइनस हाफ होता है। इन प्लेस ऑफ माइनस हाफ वी कैन राइट cos 120 degree minus less than cos theta and less than cos 60 degree, right? Now cos cancel, तो I think 60 इधर थीटा इधर 120 होगा, ठीक है। अब 2 तो यहां पर क्या मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है भाई, 3 मल्टीप्लाई करना है, दैट मींस 3 मल्टीप्लाई करने से तो ये हो गया, देखो 180 डिग्री हो गया, इधर 3 थीटा हो गया, और इधर 360 डिग्री हो गया 3 मल्टीप्लाई करने के बाद। सो दैट मीन्स अगर ये डिग्री को अगर मैं कन्वर्ट करूं रेडियन में, ठीक है, तो क्या होता है, पाई लेस देन 3 थीटा लेस देन 2 पाई, ठीक है, हो गया। बट ये तो रेंज में नहीं है, रेंज के बाहर चला गया, देखो पाई से क्रॉस कर लिया तो, लेकिन कॉस फंक्शन का रेंज तो क्या होता है, 0 से लेके पाई तक होता है, 0 से लेके पाई तक होता है, जो भी एंगल हो, जो भी एंगल हो, थीटा हो, 3 थीटा हो, 2 थीटा हो, 100 थीटा हो, 0 और पाई को क्रॉस तुम नहीं कर सकते हो। बट यू कैन सी पाई से लेके 2 पाई, दैट मींस यू ऑलरेडी क्रॉस्ड दिस लिमिट ग्रेटर देन पाई। तो अब क्या करना है, वही प्रोसेस, माइनस मल्टीप्लाई करो, -2 पाई लेस देन -3 थीटा, ठीक है, और लेस देन माइनस पाई। अब क्या करेंगे, यहां पर 2 पाई 2 पाई 2 पाई वो ऐड करते हैं, दैट मींस 0, यहां पर 2 पाई -3 थीटा, और इधर 2 पाई माइनस पाई दिस। अब आ गया रेंज में, देखो 0 से लेके पाई तक तो आ गया, बट यहाँ पर एंगल चेंज हो गया, नाउ फ्रॉम 1, सो व्हाट टू डू, एंगल चेंज हो गया, दैट मींस व्हाट, मुझे भी यहाँ पर चेंज करना है, वी आर बाउंड। सो y इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 3 थीटा की जगह में मुझे क्या लिखना है, 2 पाई -3 थीटा, ठीक है। तो अब cos इनवर्स और cos कैंसिल होके, cos इनवर्स cos कैंसिल, कैंसिल मारो कैंसिल मारो, फिर क्या रहेगा 2 पाई -3 थीटा, ठीक है ना। अब यहां पर y इक्वल्स टू 2 पाई -3 थीटा, मतलब क्या होता है भाई, थीटा मतलब तो ये होता है क्या होता है, cos इनवर्स x। सो dy बाई dx इक्वल्स टू -3, और इधर फिर से एक माइनस आएगा, इट मींस ये प्लस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आ गया प्रूफ है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इस टाइप का क्वेश्चंस सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाफ लेस देन एक्स लेस देन 1, यहां तक तो फिक्स्ड है, यहां तक हर जगह सेम होगा, ठीक है। तो यहां पर हाफ, हाफ मतलब क्या लिख सकते हैं भाई, कॉस, हाफ मतलब कॉस 60 डिग्री ना, कॉस 60 डिग्री मतलब पाई/3 लिख सकते हैं, और इधर एक्स मतलब कॉस थीटा, और इधर 1 मतलब कॉस 0, ठीक है। तो एंगल तो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, 0 थीटा और इधर पाई/3। अब 3 थीटा चाहिए, 3 3 3 मल्टीप्लाई मारेंगे तो देखो यहाँ पर तो आराम से ये तो डायरेक्ट आ गया रे भाई, ये तो डायरेक्ट आ गया, ये तो डायरेक्ट आ गया। सो फ्रॉम 1, यहाँ पर कुछ ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट आ गया, तो यहाँ पर 0 से पाई, तो डायरेक्ट फ्रॉम 1 में जाओगे, y इक्वल्स टू क्या होगा, cos इनवर्स cos 3 थीटा ही लिखोगे तुम, क्योंकि यहाँ पर दिस एंगल इज नॉट चेंज्ड। सो y इक्वल्स टू 3 थीटा dy बाई dx इक्वल्स टू, अच्छा 3 थीटा मतलब क्या होता है, 3 cos इनवर्स x, सो दैट मींस 3, और इधर माइनस एक आएगा, 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, राइट, हो गया। अच्छा फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे,
क्वेश्चन नंबर 3 में जाओ, क्या है, -1 लेस देन एक्स लेस देन -12। थोड़ा देखते हैं उसको। जैसे -1 को कॉस पाई लिख सकते हैं हम लोग, एक्स मतलब यहाँ पर कॉस थीटा, और -12 को जैसे हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर, -12 मतलब क्या होता है, 120 डिग्री, कॉस 120। अच्छा 120 को अगर मैं रेडियन में लिखूं, क्या लिख सकता हूं, 120 को अगर मैं रेडियन में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, देखो तो। 120 डिग्री, दैट मीन्स 180 इंटू 2 पाई बाई 3 कॉस 2 पाई बाई 3, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अब कॉस 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 कैंसिल होगा, दैट मीन्स 2 पाई बाई 3 इधर आएगा, इधर आएगा सिर्फ थीटा, और उधर आएगा पाई। अब 3 3 3 मल्टीप्लाई मारेंगे, यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पर 3 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर 3 पाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर -3 पाई, फिर उसके बाद -3 थीटा लेस देन -2 पाई, ठीक है। अब 2 पाई अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, 2 पाई अगर मैं ऐड करूं तो ये हो जाएगा -पाई लेस देन 2 पाई-3 थीटा लेस देन 0, है कि नहीं, लेस देन 0। अब यहां पर देखो -पाई से लेके 0 तक आ गया, लेकिन मुझे चाहिए क्या, 0 से लेके पाई तक ना, तो एक माइनस मल्टीप्लाई फिर से कर लेते हैं, तो 0 यहां पर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 थीटा-2 पाई लेस देन पाई, ठीक है, हो गया। सो दैट मींस यहां पर एंगल चेंज हो गया, 3 थीटा-2 पाई ऐसा हो गया, ठीक है, ठीक है, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ फ्रॉम वन, अब फ्रॉम वन में जाओ, y इक्वल्स टू क्या है, cos इनवर्स, उसके जगह क्या लिखेंगे, cos 3 थीटा की जगह में 3 थीटा-2 पाई, ठीक है, ओके। अब यहां पर cos इनवर्स और cos कैंसिल अगर मैं कर दूं, अच्छा यहां पर देखो, ये 3 थीटा-2 पाई, 3 थीटा-2 पाई cos 3 थीटा माइनस, मुझे वेरीफाई करना है ना कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, ठीक है, तो माइनस प्लस का एक यहाँ पर गुणमल होता है, तो कॉस, अच्छा ये 2 पाई जो है ना वो तो पहले रहना चाहिए, देखते हैं 2 पाई-3 थीटा। कोसाइन फंक्शन में हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, माइनस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर। कोसाइन फंक्शन में जैसे साइन अगर फंक्शन होता, इफ यू हैड दिस साइन फंक्शन, देन you could not interchange the position of the angles, and if you interchanged their position, then you would have taken the minus sign in the front of the sine function, okay, because sine function it is odd function, okay. So for the cosine function you have a plus point, and that is what you can interchange the angle positions, because minus sign will be there and the cosine function will absorb the minus sign. तो 3 थीटा-2 पाई जो बात है, 2 पाई-3 थीटा एक ही बात है, और 2 पाई-3 थीटा आई थिंक इट इज द केस ऑफ द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर बात एक ही है। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, दैट मींस 3 थीटा-2 पाई, सो y इक्वल्स टू यहाँ पर वही चीज, 3 थीटा मतलब 3 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, -2 पाई, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 3 √1 - x², यहाँ पर एक माइनस रहेगा, और इधर माइनस तो और कुछ नहीं है, बस हो गया आंसर, यही तो आंसर है, यही तो आंसर है, ठीक है, वेरी सिंपल, हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ में आ गया है, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये आपका
होमवर्क रहेगा, ये आप करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये तो मैंने कर ही दिया है, और क्या चाहिए सर, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे, स्टार्ट करो। y इक्वल्स टू 10 इनवर्स ब्रैकेट में ट्वाइस एक्स बाई 1 - x², और यहां पर रेंज क्या क्या दिया हुआ है, -1 <x <1, ये है फर्स्ट। सेकंड क्या है, -∞ x -1। थर्ड वाला क्या है, 1 x ∞, ठीक है। अब शुरू करते हैं। y इक्वल्स टू 10 इनवर्स ट्वाइस x बाई 1 - x², ठीक है। हाँ, तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर देख के मुझे तो लग रहा है यहां पर एक फॉर्मूला, ठीक है। जैसे एक फॉर्मूला है tan 2 थीटा का, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2 tan थीटा बाई 1 - tan² थीटा। देखो तो ये फॉर्मूला देख के ये स्ट्रक्चर जो है, x के जगह अगर मैं tan थीटा सब्स्टिट्यूट करूं, दैट मीन्स द समरी इज दैट you need to remind all the formulas, all the trigonometrical formulas, submultiple and multiple formulas, these formulas, for getting the clear idea about your substitution. Okay, so if you have no idea regarding these formulas, then I think you'll not be able to take the substitution as well. Okay, so before taking the substitution, try to remember this multiple and submultiple formulas. Okay, so x equals to tan theta, it is your substitution. So y equals to tan inverse 2 tan theta by 1 - tan² theta, right? So y equals to tan inverse, ये क्या होगा, tan 2 theta होगा, राइट। तो यहां पर तो इक्वेशन नंबर 1 है। अब तो यहां पर वही शुरू करेंगे, और क्या है, ठीक है। नाउ शुरू करते हैं, -1 <x <1। अब जो कि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा अगर मैं फंक्शन लूं, थीटा किसके किसके बीच लाई करता है, -π/2 से लेके π/2। दैट मीन्स 10 के साथ जो भी एंगल चिपका हुआ है, वो एंगल -π/2 से लेके +π/2 के बीच लाई करना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। हो गया, एकदम सिंपल है। तो यहां पर देखो, -1 मतलब यहां पर क्या लिख सकते हैं, -1, अच्छा 1 मतलब तो 10π/4 होता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, साइन फंक्शन एंड tan फंक्शन, अगर माइनस का कोई भी वैल्यूज है तो माइनस को बाहर रख के ओरिजिनल वैल्यू लिख दो, बट कोसाइन फंक्शन में अगर कोई माइनस का वैल्यू है, तुम्हें एक्यूरेट वही निकालना पड़ेगा। जैसे -1 को हम लोगों ने cos π लिखा है, ठीक है। तो -1 को तो हम लोग -cos 0 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि cos 0 1 होता है, उसके सामने माइनस, ऐसा नहीं होता है। cos फंक्शन में ये सब नहीं होता है, ठीक है। cos sec, ठीक है, ये सब फंक्शंस में ये सब नहीं होता है, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग्स। तो साइन और tan में अगर माइनस है, माइनस का जगह माइनस रहेगा, तुम अपना काम चलाओ। 1 के जगह 10π/4, ठीक है, और x के जगह क्या, tan थीटा, और इधर 10π/4, ठीक है। अब 10 कैंसिल, -π/4 लेस देन थीटा लेस देन π/4। तुम्हें क्या चाहिए, 2 थीटा चाहिए, नो, 2 मल्टीप्लाई मारो, -π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2, हो गया। अब यहां पर सो फ्रॉम 1 जाओ, y इक्वल्स टू 10 इनवर्स tan 2 थीटा, चेंज नहीं होगा यहां पर, तो y इक्वल्स टू सिर्फ 2 थीटा है यहां पर। सो dy/dx इक्वल्स टू 2 इंटू, अच्छा यहां पर थीटा मतलब क्या होता है, थीटा मतलब यहां से निकालो तो थीटा
टेन इनवर्स एक्स होगा शायद, टेन इनवर्स एक्स। सो दैट मीन टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला ये होता है, बस ये होते हैं आंसर। ठीक है, हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा, माइनस इंफिनिटी लेस देन एक्स लेस देन -1। तो माइनस इंफिनिटी क्या लिख सकते हैं, -10π/2, क्योंकि 10π/2 इंफिनिटी होता है, सामने माइनस साइन है, -10π/2, एकदम सिंपल। साइन और 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कॉस फंक्शन, सेक फंक्शन एंड कॉट फंक्शन। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर x मतलब यहाँ पर क्या होगा, टेन थीटा, और -1 मतलब -10π/4। ठीक है, तो यहाँ पर तो -π/2 लेस देन थीटा लेस देन -π/4। ठीक है, अब तो 2 मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स -π लेस देन 2 थीटा। ठीक है, और इधर -π/2। ठीक है, दैट मीन्स -π से लेके -π/2, लेकिन जो 10 फंक्शन है π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2 तक तो होना चाहिए, बट यहाँ पर देखो -π/2 को क्रॉस करके -π में चला आया, दैट मीन्स और भी छोटा हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, और क्या माइनस मल्टीप्लाई मारो यहाँ पर, सीधा यहाँ पर क्या करोगे, पाई प्लस कर दोगे, पाई, तो ये 0 हो जाएगा। सॉरी, अगर मैं हर एक के साथ पाई प्लस करूं, ये 0 हो जाएगा, ये देखो π/2 हो जाएगा, बस और क्या चाहिए तुम्हें, और तो कुछ नहीं चाहिए यहाँ। ठीक है, तो यहां पर होगा 0, यहां पर पाई प्लस 2 थीटा, और यहां पर π/2। अब पाई प्लस 2 थीटा दैट मींस कौन सा क्वाड्रेंट, पाई प्लस 2 थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 ऑलरेडी नेगेटिव होता, सॉरी पॉजिटिव होता है, तो बस और क्या यहाँ पर सोचना है, we need not to think about anything here, okay, because it is the case of third quadrant, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, जस्ट यहाँ पर वो 2 थीटा की जगह आपको पाई प्लस 2 थीटा बिठा देना है, बस हो गया। ठीक है, कोई भी माइनस प्लस का कोई भी यहाँ पर हेर फेर नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रॉम वन क्या होगा, y इक्वल्स टू 10 इनवर्स 10, 2 थीटा की जगह तुम्हें जस्ट पाई प्लस 2 थीटा बिठा देना है। सो y इक्वल्स टू 10 इनवर्स 10 कैंसल, पाई प्लस 2 थीटा, दैट मीन्स पाई प्लस 2 थीटा की जगह तो तुम्हें 10 इनवर्स x बिठाना है। ठीक है, तो dy/dx इक्वल्स टू पाई का तो 0 हो जाएगा, 2 बाहर रहेगा, और 10 इनवर्स x का तो ये है। ठीक है, ये होता है आंसर, पाई प्लस 2 थीटा, दैट मींस थर्ड क्वाड्रेंट का केस होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये 3 क्या है, 1 लेस देन x लेस देन इंफिनिटी। ठीक है, तो 1 को तो 10π/4 लिखेंगे, फिर x को 10 थीटा, और इंफिनिटी को 10π/2 लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 10 10 कैंसिल, दैट मींस π/4 लेस देन थीटा लेस देन π/2। अच्छा, यहां पर मैंने क्या बोला है, समरी क्या है, अगर तुम्हारे पास साइन फंक्शन और टेन फंक्शन है, तुम्हें माइनस के बारे में नहीं सोचना है, जहां पर माइनस है वहां पर ही रख दो उसको, बाकी अपना काम करो। जब कोसाइन फंक्शन होता है तब माइनस को तुम्हें एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। ठीक है, फॉर सम एंगल्स, जैसे -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई लिखेंगे, ऐसे हर वैल्यू का कॉस एंगल कुछ होगा। ठीक है, तो वही आपको लिखना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, अगर यहां पर 2 2 2 कैंसिल करें तो क्या होगा, क्योंकि 2 तो मुझे कैंसिल करना है, क्योंकि इट इज द केस ऑफ 2 थीटा। 2 2 2 अगर मैं यहाँ पर कैंसिल करूं, दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई है। यहां पर देखो हाईएस्ट वैल्यू π/2 तक होना चाहिए, कोई भी एंगल हो 10 के साथ अगर है तो π/2 तक ही होगा, यू कांट
cross this pi by 2 angle, but here you can see already it is crossed, pi by 2 को क्रॉस कर लिया उसने। तो इन दिस केस यहां पर तो सब पॉजिटिव दिख रहा है ना, माइनस मल्टीप्लाई मारो, माइनस मल्टीप्लाई मारो, आग बंद करके माइनस मल्टीप्लाई मारो, ठीक है, अपने आप आंसर निकलेगा, ठीक है, माइनस पाई बाई 2, ठीक है, माइनस माइनस एंगल भी इधर उधर हो गया। अब पाई प्लस मार दो, बस ये 0 हो गया, और इधर पाई माइनस 2 थीटा, और ये हो जाएगा पाई बाई 2। दैट मीन्स यहां पर एंगल क्या आ गया, पाई माइनस 2 थीटा। देखो ये पाई माइनस 2 थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। हियर देयर इज अ प्रॉब्लम, सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan नेगेटिव होता है, दैट मीन्स नेगेटिव साइन एक आ रहा है, यू शुड कंसीडर वन नेगेटिव साइन हियर। देखो उसको कैसे करते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था शायद ये। तो फ्रॉम वन में तो जाएंगे, फ्रॉम वन जाएंगे, y इक्वल्स टू ये भी लिखेंगे, क्या है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 2 थीटा के जगह में हम लोग लिखेंगे पाई माइनस 2 थीटा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि tan पाई माइनस 2 थीटा का वैल्यू अगर मैं साइड में निकालूं, tan पाई माइनस 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, माइनस tan 2 थीटा होता है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का केस है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan नेगेटिव होता है, तो माइनस tan 2 थीटा, माइनस tan 2 थीटा, बट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 प्लस tan 2 थीटा था। What does it mean? Anyhow, you will have to vanish this minus sign. Just you have to introduce something so that this minus sign supposed to be vanished from this line. तो अगर यहां पर इसका आंसर माइनस में कुछ आ रहा है, उसको अगर मैं वेनिश करना चाहूं, सामने एक माइनस साइन मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है, फोर्सफुली, क्योंकि मुझे यहां पर इक्वेशन नंबर 1 को चेंज नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 1 को फिक्स रखना है। दैट मींस जो भी यहां पर एंगल के बीच जो भी चेंजेस आए, इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि एंगल थीटा के जगह तुमने पाई माइनस थीटा लिखा, पाई प्लस 2 थीटा लिखा, कुछ भी लिखा, एंगल कुछ भी चेंजेस हो सकता है, बट याद रखना आफ्टर चेंजिंग द एंगल्स द इक्वेशन नंबर 1 should not be affected, okay, should not be influenced as well, okay. सो इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं सही ढंग से लिखना चाहूं तो एक माइनस साइन मुझे यहां पर फोर्सफुल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू माइनस एक बाहर रहेगा, tan इनवर्स और tan कैंसिल, दैट मींस पाई माइनस 2 थीटा। y इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस 2 इंटू थीटा, मतलब tan इनवर्स x, बस। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस पाई, ये तो हो ही गया, और इधर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब तीनों का आंसर सेम आ गया रे भाई, तीनों का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो आपका होमवर्क रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क लिख लो, ठीक है, यहां पर होमवर्क लिखो, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब पाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, और एंगल है यहां पर दैट मींस रेंज x ग्रेटर देन 1 बाई रूट 3, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 है x लेस देन माइनस 1 बाई रूट 3, ये एक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है साइन इनवर्स ट्वाइस x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन x लेस देन 1, और दूसरा है माइनस इंफिनिटी लेस देन x लेस देन इंफिनिटी, तीसरा है 1 लेस देन x लेस देन इंफिनिटी, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका आंसर डी बाई डी एक्स निकालना है,
0 लेस देन एक्स लेस देन इंफिनिटी, और दूसरा क्वेश्चन है माइनस इंफिनिटी लेस देन एक्स लेस देन 0। ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। तो मीन्स आपको इसका सॉल्यूशन मुझे करके पीडीएफ फॉर्मेट में कमेंट सेक्शन में दे देना है। अगर आप व्हाट्सएप में भी मुझे भेज सकते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जस्ट लिख लो 8473955827। You can send me your solution in this WhatsApp number. Okay, so that's it, sufficient for today, that's enough. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। till then stay safe, stay healthy, bye and जय हिंद।